हेलो एवरीवन। ओके, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ एलिमेंट्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो जब भी हम लोग टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग अगर टाइप ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, तो कुछ एक जो है ना फिक्स्ड फॉर्म में हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू सी द टाइप ऑफ एलिमेंट, और व्हेनेवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी? द फर्स्ट थिंग वी आर सीइंग इज द एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। व्हाट? एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। The second part, what we are going to see, we are going to see the linear and non-linear element. The third part, what we are going to see, we are going to see the bilateral and unilateral. The fourth जो क्लासिफिकेशन होगा हमारा, the fourth classification is distributive and lumped. डिस्ट्रीब्यूटिव एंड लम्प्ड एलिमेंट्स। और हमारा जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, व्हाट इट इज अ टाइम वेरिंग and time invariant. Okay, so whenever we talk about any kind of an circuitry or any kind of an electronics element, what we are going to classify, and the classification is based on the whether that element is a active or passive, it's a linear or non-linear, it's a bilateral or unilateral, it's a distributive or lumped element, it's a time varying or time invariant. So these are the five major classification of an element. So whenever we talk about any element, it is not like that element should be only active. That can be active as well as the non-linear, can be a bilateral, can be a lumped, a same circuit, a same component or same elements can be active, can be non-linear, can be bilateral, can be distributed, can be time varying. Okay, so in any these five classes they can come, but they are not together active and passive at the same time. For the same operating frequency, for the same conditions, a same element will not behave like an active as well as a passive kind of a thing. Okay, so let's go one by one to all these element, and then we are going to discuss what do you mean by this particular part. Okay, so whenever we talk about this active and passive element, so let's go for the first classification. So let me go the first classification, what it is: active and passive element. So any element is said to be active when it's going to said to be active, when that particular element is going to deliver some energy outside the world. ठीक है, कोई भी हमारा जो सर्किट होगा, उस सर्किट को हम लोग तभी एक्टिव बोलेंगे, या उस कंपोनेंट को हम लोग तभी एक्टिव बोलेंगे जब वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। डिलीवर कहाँ करेगा? आउटसाइड वर्ल्ड में। ओके, सो इन वर्ड्स व्हाट वी कैन राइट अ टू terminal element is said to be active
if it deliver, what it will deliver a net amount of energy to the outside world. Okay, otherwise it is said to be passive. Okay, so whenever we talk about any element, if any elements are there, if it is an active element, it will deliver some energy, and if it is a passive element, then it will not deliver any kind of energy. Let me consider a simple resistor. Okay, let me consider this resistor. Whenever we talk about this resistor, if I will apply any power, if I will apply any voltage, a current will flow, and because of this voltage and current, the resistance will what? It will deliver the thing. But if we will remove this voltage and current, automatically it will not deliver any kind of energy. So R is an active, is a passive element. तो यहाँ पे R क्या हो जाएगा? आपका पैसिव एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि whenever we talk about the characteristic curve, तो ये characteristic curve में क्या होगा? These particular part, ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगर आपका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक यहां पे एग्जिस्ट करता है तो वो क्या है? इट्स अ पैसिव. ये क्या होगा? आपका पैसिव होगा. ये आपका क्या होगा? पैसिव होगा. लेकिन अगर आपका कोई भी कंपोनेंट इस पर्टिकुलर, अगर ये जो है हमारा क्या है? वी आई कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये आपका वी है, ये अगर आर है, आई है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक में अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है, तो ये क्या होगा? यहां पे हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्टिव हो जाएगा. तो दीज आर द एक्टिव पार्ट. ठीक है, तो whenever we see any characteristic curve, अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे अगर रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने वी आई कैरेक्टरिस्टिक को देखा. तो इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक में हमारा, ओके, लेट मी ड्रॉ अ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रजिस्टर. व्हाट इट विल हैपन? दिस इज द वी, दिस इज द आई. तो हम लोगों ने देखा था व्हेन वी इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो, तो आर क्या होगा? जीरो पे होगा. whenever we are going to increase, ये क्या होगा? इस तरीके से मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है? कि इंक्रीज हो रहा है. when V is equal to 1 volt, I is equal to 1 ampere, तो R क्या होगा? R is equal to V upon I, that is 1. अगर ये -1 वोल्ट है, इट्स अ -1 वोल्ट, ये -1 एम्पियर है, तो R is equal to what? V divided by I, that is -1 by -1, that is what? Your 1. तो V R जो है, अगर आपका जब भी पॉजिटिव है, whenever R is a greater than 1, ये क्या होगा? एक्टिव होगा. ये पैसिव होगा. क्या होगा? ये पैसिव होगा. सो R मेरा कब पैसिव होगा? जब R इज ग्रेटर देन 1. अगर R की वैल्यू हमारी 1 से ज्यादा है, ठीक है, एक नहीं बोलना चाहिए, इसको जीरो बोलना चाहिए. अगर जीरो से ज्यादा है, आर की वैल्यू अगर मेरी जीरो से ज्यादा है, क्योंकि यहां पे जीरो भी एग्जिस्ट करेगा, जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आर की वैल्यू इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो, देन इट्स अ पैसिव एलिमेंट. बट इफ आर इज लेस देन जीरो, अगर आर की वैल्यू लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव में क्या होगा? आपका इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इट बिकम द एक्टिव. ठीक है, तो R की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा? इट्स बिकम द एक्टिव एलिमेंट. ओके, सो
लेट मी गो टू द सेकंड क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, ओके, लेट मी कम हियर एंड वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्लासिफिकेशन। तो सेकंड क्लासिफिकेशन मेरा क्या था? द सेकंड क्लासिफिकेशन वाज लीनियर एंड नॉन लीनियर। ओके, सो whenever we talk about the linear and non-linear element, तो linear element क्या होगा? an element is said to be linear if for time t, for time t its a characteristic is a straight line। through the origin, through the origin। ओके, अदरवाइज क्या होगा ये? अदरवाइज इट्स अ नॉन लीनियर। ओके, तो क्या बोल रहा है? लेट मी अंडरस्टैंड, लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर हम लोग वी और आई के फॉर्म में देख रहे हैं, वोल्टेज और करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व देख रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट लीनियर कब होगा? फॉर एनी टाइम इट द कैरेक्टरिस्टिक शुड बी ए स्ट्रेट लाइन एंड इट विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। इस ओरिजिन से पास होगा और क्या होगा? तो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये क्या होगा? देन इट्स अ लीनियर। ओके, अगर ये जो है ना मेरा ये है इस तरीके का जो एलिमेंट है, ये क्या है? इट इज नॉट लीनियर। ये क्या हो गया? नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा और ओरिजिन से ये जो है ना निकल जा रहा है। अगर हम लोग और भी एग्जांपल देखें तो ये अगर इस तरीके का जो है ना मेरा जो सिग्नल है ये ओरिजिन से भी जा रहा है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे जो है ना ये इसका वी आई है, ये वी है, ये आई है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है? थ्रू आउट द टाइम ये जो है ना क्या है? लीनियर नहीं है। अगर टाइम इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग देखें एट टी इज इक्वल टू 4 या t इज इक्वल टू, या यहाँ पे ये जो I है I इज इक्वल टू 4 एम्पियर पे क्या हो रहा है? वोल्टेज मेरा कांस्टेंट हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लीनियर कर्व, इट्स अ नॉन लीनियर। तो ये भी क्या हो गया आपका जो है ना नॉन लीनियर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी एलिमेंट लीनियर कब होगा? जब जो है ना एनी एलिमेंट इज सेड टू बी अ लीनियर इफ फॉर अ टाइम टी इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट विल पासेस थ्रू द ओरिजिन। जब ये ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन होगा तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। ओके, लेट मी गिव यू द अनदर एग्जांपल। तो दिस इज व्हाट लीनियर।
ये क्या है आपका v है, ये i है, सो इट इज ऑल्सो लीनियर। लीनियर क्यों हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है और इट्स ए स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है आपका लीनियर है। ओके, तो दिस इज व्हाट लीनियर काइंड ऑफ ना एलिमेंट। तो इस टाइप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स अ लीनियर एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट अगर जो है क्या हो रहा है कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है और ओरिजिन के थ्रू पे होते हुए जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट कहते हैं। अदरवाइज व्हाट इट विल बी, इट विल बी अ नॉन लीनियर एलिमेंट। ओके, सो लेट मी गो टू द अनदर क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, वो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, इट्स अ बायलैटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट। ठीक है, तो बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट से क्या मतलब है हम लोगों का, कि कोई भी जो एलिमेंट होगा वो बायलैटरल कब होगा, जब वो जो है ना सेम टाइम पे सेम तरीके का बिहेवियर करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना रजिस्टर के टर्म में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एन एलिमेंट इज सेड टू बी bilateral if it offer the same impedance for the different direction of the current flow. Otherwise what it is said to be, otherwise it is said to be unilateral. ओके, तो अगर हम लोग जो है ना वी आई कर्व को देखें, अगेन लेट मी गो टू द वी आई कर्व। अगर ये मेरा वी आई कर्व है, तो इस वी आई कर्व में अगर मेरा जो वोल्टेज है, अगर जो करंट है, करंट को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करा रहा हूँ, तो जो मेरा वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है और जिसकी वजह से मेरे को जो इम्पिडेंस मिल रहा है, अगर मैं उस करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में डालूं तो भी मेरे को क्या होना चाहिए, सेम इम्पिडेंस मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर, अगर आई का वैल्यू 4 एम्पियर है, तो जो जेड की वैल्यू होगी, अगर वो 4 ओम जेड, या जो है ना हम लोग इसको आर बोलें, तो आर की वैल्यू अगर हमारी 4 ओम है, तो आई इज इक्वल टू -4 एम्पियर पे मेरा जो आर या जेड की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 4 ओम होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर पे अगर मेरा 4 ओम है और आई इज इक्वल टू -4 एम्पियर पे भी अगर मेरा 4 ओम है, तो क्या होगा, मेरा जो है ना ये जो है जो एलिमेंट है वो बायलैटरल एलिमेंट कहलाएगा। तो बायलैटरल एलिमेंट कहलाएगा, तो हम लोगों को ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 16 वोल्ट। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे सेकंड वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू -4, तो ये क्या हो जाएगा, -16। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो करंट है यहाँ पे, अगर ये 4 एम्पियर था,
तो जो है आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे 16 वोल्ट मिल रहा था। और यही अगर आपका -4 एम्पियर होगा, -4 एम्पियर होगा, तो आपको क्या होना चाहिए, -16 वोल्ट जो है ना आपको मिलना चाहिए। -16 वोल्ट अगर मिल रहा है तो यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक पास होगी, जो कर्व पास होगा, दैट पर्टिकुलर कर्व इज नोन एज द बायलैटरल। तो ये क्या होगा, बायलैटरल होगा। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव पार्ट में जो है वही अगर नेगेटिव पार्ट में है, देन इट्स अ बायलैटरल कंपोनेंट। ओके अगर यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू -16 ना होके अगर ये +16 ही होता, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बायलैटरल। अगर फॉर एग्जांपल के लिए कंसिडर करो, यहाँ पे V इज इक्वल टू आपका ये भी -4 वैल्यू आ गया और ये भी आपका -4 है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 16 वोल्ट है तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो क्या होगा, यहाँ पे ये आपका 4 एम्पियर हो गया, ये आपका -4 एम्पियर हो गया, ये आपका क्या है 16 वोल्ट है। तो 4 एम्पियर पे आपको जो है ना ये पर्टिकुलर वैल्यू मिली, -4 एम्पियर पे आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू मिली। तो आपका जो कर्व होगा वो कर्व क्या होगा, इस तरीके से होगा। सो इट इज नॉट अ बाइलैटरल एलिमेंट, ये क्या है आपका यूनिलैटरल एलिमेंट है। सो दिस इज द यूनिलैटरल। ये वाला क्या है, ये वाला जो है ना दिस वन इज अ बायलैटरल। तो ये अगर देखेंगे तो ये क्या है, बायलैटरल। तो बायलैटरल एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द बायलैटरल एलिमेंट, वो क्या होगा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमको पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है वो हम लोगों को जो है ना इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में भी मिलना चाहिए। अगर ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको जो है ना मिलना चाहिए। ओके लेट मी शो यू द अनदर एग्जांपल। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर वैल्यू, सो अगर हम लोग इस तरीके से कर्व को देखें, सो दिस इज व्हाट 4, दिस इज व्हाट 16, दिस इज व्हाट -4, दिस इज व्हाट -16। यहाँ पे अगर हम लोग देखें दिस इज द 8, ये 16 आ रहा है, -8, ये क्या है 16 वोल्ट है। तो ये देखोगे तो ये भी क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो बायलैटरल। ये भी क्या है, बायलैटरल एलिमेंट है। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट बायलैटरल एलिमेंट। ऑल्दो इट्स नॉट लीनियर, बट क्या है ये बायलैटरल एलिमेंट है। तो बायलैटरल एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द बायलैटरल एलिमेंट इज व्हाट, इट शुड बी ऑफर द सेम इम्पीडेंस फॉर द डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। तो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या होना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ द इम्पीडेंस होना चाहिए। देन इट्स सेड टू बी अ बायलैटरल एलिमेंट। ओके सो लेट मी गो टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग फोर्थ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपका जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लम्प्ड एलिमेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और लम्प्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट को अगर हम लोग फिजिकली सेपरेट कर पा रहे हैं, ओके अगर हम लोग इसको लिखना चाहें इन वर्ड्स में तो क्या लिख सकते हैं, एन एलिमेंट is said to be is to be lumped element if it is physically separable, if it can physically separate।
तो जो लम्प्ड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, फिजिकली सेपरेट होता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट आर इन द लाइन। ओके, एलिमेंट्स distributed in the line are said to be distributive। ओके, तो अगर हम लोग इसको जो है ना हम लोग समझना चाहें तो क्या होता है कि अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा एक रजिस्टर है, हमारा एक जो कैपेसिटर है, हमारा ये इंडक्टर है, ये क्या है, फिजिकली सेपरेट हैं। दे आर नॉट द सेम कॉम्पोनेंट। ये क्या है, फिजिकली सेपरेटेड है। सो व्हाट इट इज अ आर, इट इज अ सी, इट इज अ एल। तो दिस ऑल आर फिजिकली सेपरेटेड एलिमेंट। लेकिन अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट के बारे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल लेट मी कंसीडर दिस वायर एज अ कंडक्टिंग मटेरियल। तो इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में क्या होगा कि आपका आर इसी के अंदर में है, सी इसी के अंदर में है, एल इसी के अंदर में है। हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं किए हैं। ये जो पूरा का पूरा मेरा जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल पूरा का पूरा क्या होगा, आपका आर, सी और एल तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो आर है, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ोगे तब हम लोग देखेंगे कि जो भी मेरा जो वायर है, इस वायर को अगर मैं यहाँ बीच से काट देता हूँ, अगर मैं यहाँ से काट देता हूँ तो इसके अंदर आर एल सी जो पैरामीटर हैं वो तीनों के तीनों एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, उसको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर लिया है। तो यहाँ पे जो यूनिट होती है, ये यूनिट अगर देखोगे तो ये आपका क्या है, ओम है, कैपेसिटर का फैरेड होता है, एल का क्या होता है, हेनरी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो आर का क्या होता है, इट्स अ ओम पर मीटर। ओके, सी का वैल्यू क्या होता है, फैरेड पर मीटर। और आपका जो एल है, एल का क्या होता है, हेनरी पर मीटर। तो ये पर मीटर के फॉर्म में डिफाइन होता है। अगर हम लोगों कोई भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए ये अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को काट देता हूं यहाँ से, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, पर मीटर में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और इसके अंदर में क्या होगा, रेजिस्टिव एलिमेंट भी होगा, कैपेसिटिव एलिमेंट भी होगा, इंडक्टिव एलिमेंट भी होगा। तो तीनों के तीनों यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट बोलते हैं। ओके, तो हम लोग जब भी सर्किट थ्योरी की बात करते हैं तो सर्किट थ्योरी में क्या होता है, आपका लम्प्ड एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। लम्प्ड एलिमेंट हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका अप्रॉक्सीमेशन है, ये जो है लोअर फ्रीक्वेंसी में काम करता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वहां पे फील्ड थ्योरी आ जाती है। ठीक है, तो वहां पे फील्ड थ्योरी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट है उसको हम लोग ज़्यादातर फील्ड थ्योरी में डिस्कस करते हैं। और जो हमारा लम्प्ड एलिमेंट सर्किट है उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्किट थ्योरी या जो है ना जो आपका नेटवर्क थ्योरी है उसमें ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, लम्प्ड एलिमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट मी गो टू द लास्ट क्लासिफिकेशन। जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है वो क्या है, इट्स अ टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट। ओके, सो लेट मी गो टू द फिफ्थ वन। तो आपका जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, व्हाट इट इज अ टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट। ओके, तो अगर हम लोग इसके बारे में बोले तो क्या होता है, एन एलिमेंट is said to be time invariant if it
characteristic does not change with the time. Okay, otherwise it's said to be time varying. ओके, सो whenever we talk about any element, अगर कोई भी जो है ना एलिमेंट, फॉर एग्जांपल के लिए अगर दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दिस इज द v, दिस इज द i, तो अगर हम लोग ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इफ t इज इक्वल टू 1 पे, ये टाइम इज इक्वल टू 1 पे इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, एंड अगर t इज इक्वल टू 2 पे, अगर t इज इक्वल टू 2 पे, या जो है ना t इज इक्वल टू 2 पे इस तरीके का जो कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, और अगर t इज इक्वल टू 3 पे, लेट मी ड्रॉ अनदर ग्राफ, अगर t इज इक्वल टू 3 पे, t इज इक्वल टू 3 पे इस तरीके का अगर ग्राफ दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप का जो सर्किट होगा, दैट इज व्हाट योर टाइम वेरिंग एलिमेंट। तो ये क्या हो गया आपका जो है, दिस इज द टाइम वेरिंग, ये टाइम वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज व्हाट टाइम वेरिंग। अगर हम लोग टाइम इनवेरिएंट के बारे में बात करें तो क्या हो गया, t इज इक्वल टू 1 पे ये कैरेक्टरिस्टिक मिला मेरे को, t इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, द सेम कैरेक्टरिस्टिक विल बी t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 3 पे व्हाट वी विल गॉट, t इज इक्वल टू 3 पे द सेम कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई भी टाइम इंटरवल पे अगर हम लोग देखें द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, देन इट्स अ टाइम इनवेरिएंट सर्किट। ओके, या टाइम इनवेरिएंट जो है ना आपका एलिमेंट होगा। सो एनी एलिमेंट इज सेड टू बी अ टाइम इनवेरिएंट इफ द कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर जो है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर चेंज नहीं हो रहा है, देन इट्स अ व्हाट, इट्स अ टाइम इनवेरिएंट। लेकिन अगर चेंज हो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया आपका टाइम वेरिंग हो गया। तो दिस इज व्हाट टाइम इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। So this is time invariant, this is what time varying. Okay, so let me summarize again. तो जब हम लोग जो है जो लेक्चर देख रहे थे आज का, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, बायलेटरल, यूनिलैटरल, डिस्ट्रीब्यूटेड, लम्प्ड एलिमेंट, टाइम वेरिंग एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। तो let me go to the some of the examples so that you are able to see which kind of circuit it is. So let me go for the first example. अगर इस first example के बारे में बात करें, so let me draw a characteristic curve. So if this is the characteristic curve, तो ये किस टाइप का सर्किट होगा, so this circuit is what, if it is V, if it is I, तो अगर ये मेरा VI कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जो फिगर है, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट है, सो इट्स अ फर्स्ट व्हाट, क्या, इट्स अ लीनियर एलिमेंट। ठीक है, ये लीनियर है। इसके बाद एक्टिव है या पैसिव है, सेकंड जो है क्या है हमारा, ये पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के टाइम पे देखा था कि अगर आपका फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो क्या होगा, ये हमारा पैसिव है, सेकंड और फोर्थ पे होगा तो एक्टिव एलिमेंट होगा। तो दीज टू पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट विल शो मी द एक्टिव पार्ट, ये क्या होता है, पैसिव पार्ट को दिखा रहा है। इसके बाद जो थर्ड है, ये क्या है, बायलैटरल है या यूनिलैटरल है, तो इट्स अ बायलैटरल एलिमेंट। तो व्हाट इट इज अ बायलैटरल एलिमेंट। So it's a bilateral element. So it's a linear passive bilateral element.
ओके। लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट के लिए हम लोगों को कुछ और भी क्वांटिटी चाहिए। जैसे टाइम वेरिंग के लिए हम लोगों को डिफरेंट टाइम पे जो है ना, जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जो है ना बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, इट शुड बी लीनियर, पैसिव एंड बायलैटरल एलिमेंट। लेट मी ड्रॉ द सेकंड एग्जांपल। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ड्रॉ करें, सो लेट मी ड्रॉ द सेकंड एग्जांपल। तो अगर हम लोग कुछ इस तरीके का जो है ना सर्किट जो है ना ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज व्हाट माय कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दिस इज द V, दिस इज द I। ओके, तो अगर इस टाइप का जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, इज इट अ लीनियर? नो। लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये क्या हो रहा है, लीनियरिटी इसकी खत्म हो जा रही है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन देखोगे, बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन इट्स व्हाट, इट्स बिकम द नॉन लीनियर। तो ये पहला क्या हो गया आपका जो है ना नॉन लीनियर। ओके, द सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ में है तो क्या होगा आपका, पैसिव होगा। सो इट्स अ पैसिव कंपोनेंट। और जो थर्ड पॉइंट है, बायलैटरल होगा कि यूनिलैटरल होगा, यू कैन सी कि नेगेटिव आई का जो है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, आई की इस पर्टिकुलर I1 वैल्यू के लिए जो V है वो आपका जो है ना, जो भी वैल्यू है I इज इक्वल टू I2 के लिए जो V का वैल्यू सेम है, I1 और I2 के लिए सेम है। लेकिन अगर माइनस ऑफ I1 और माइनस ऑफ I2 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू विल गॉट द डिफरेंट वोल्टेज, तो इम्पिडेंस भी आपका चेंज हो जाएगा। सो इट्स अ व्हाट, इट्स अ यूनिलैटरल एलिमेंट। तो ये क्या होगा आपका यूनिलैटरल। सो ये आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर, पैसिव और यूनिलैटरल एलिमेंट हो गया। ओके, लेट मी गो टू द थर्ड डायग्राम, अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में जो है ना, इफ यू विल सी, इफ इट इज अ V, इफ इट इज अ I, और अगर आपका ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, सो इफ दिस इज द सर्किट, तो क्या होगा, तो जो है ना फर्स्ट क्या हो गया, ये इट्स अ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्यों है, बिकॉज द लीनियरिटी हैज ब्रोकन फ्रॉम हियर। यहां से क्या हो रहा है, लीनियरिटी ब्रोकन हो रहा है। इस पर्टिकुलर रीजन के लिए लीनियर है, लेकिन इसके बाद वाले रीजन के लिए क्या है, इट्स अ नॉन लीनियर। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ नॉन लीनियर। दूसरा क्या है, एक्टिव है या पैसिव है, ये आपका जो है ना पैसिव एलिमेंट है। और तीसरा यूनिलैटरल है कि बाइलैटरल है, यू कैन सी द सेम अमाउंट वॉट एवर। अगर हम लोग आई को नेगेटिव में ले लें तो व्हाट वी विल गॉट, वी विल गॉट द सेम टाइप ऑफ सिग्नल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इट्स अ बिकम द बायलैटरल। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, बायलैटरल हो गया। लेट मी ड्रॉ द अनदर डायग्राम। अगर फोर्थ एग्जांपल हम लोग देखें तो यहाँ पे इफ यू विल ड्रॉ दिस पर्टिकुलर सर्किट, let me draw with this different color. Okay, so this is what, this is V, this is I। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट क्या हो गया, दिस इज अ लीनियर और नॉन लीनियर। सो इस पर्टिकुलर रीजन के लिए ये लीनियर है, बट इन दिस रीजन देयर इज नो सिग्नल, सो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन लीनियर। और फिर हम लोग अगर देखें तो ये हमारा क्या है, एक्टिव एलिमेंट है क्या, नहीं, ये एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो इट्स अ व्हाट, पैसिव। व्हाट इट इज, पैसिव। और जो थर्ड पार्ट क्या है, इट्स अ यूनिलैटरल और बायलैटरल, ये क्या है हमारा यूनिलैटरल। अगर हम लोग एक और कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें, लेट मी ड्रॉ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होगा, फर्स्ट इज इट अ लीनियर, नो, इट्स अ नॉन लीनियर। सेकंड, is it a active or passive? So this particular part is a active, passive part, but because of this, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आ गया, so because of this what it is a active, so what it is, active element। और जो थर्ड क्या हो गया, इट्स अ यूनिलैटरल एलिमेंट, so it's a unilateral element।
Okay, let me draw the another curve. So this is what non-linear, this is what active, and this is what unilateral. ठीक है, एक्टिव क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस इज वी आई, दिस इज वी आई. अगर हम लोग जो है ना वी आई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, सो दिस इज व्हाट एक्टिव, नॉन लीनियर एंड दिस टाइप ऑफ ना डिवाइस. ओके, so let me draw a one more curve, one or two more curve, then we will stop. So let me go to this particular example 7th. So let me draw another curve. So this is like this. This is vi. Okay, so the first thing what it is, non-linear. Non-linear. Okay, the second part what it is a passive. And what the third part? Third part it is a bilateral. Okay, yes, it is a bilateral. तो ये क्या होगा? bilateral होगा आपका. Okay, so let me draw the last one. So this is the vi characteristic, v and I, and this is the characteristic curve. So what it is? The first if we will talk whether it's a linear or non-linear, so it's a linear. It's a active or non-active? तो ये क्या होगा हमारा? It's a active. And third what it is? It is a bilateral. ओके, सो ये जो फिगर नंबर 8 है, इस फिगर नंबर 8 को देखो, और जो है जो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है रजिस्टर का, इसको देखो. ओके, तो जस्ट कंपेयर दीज टू सर्किट्स. सो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. वो कंक्लूजन क्या है? इफ आर इज ग्रेटर देन 0, इफ एल इज ग्रेटर देन 0, इफ सी इज ग्रेटर देन 0, then what? They are called to be passive element. Okay, if r is greater than 0, l is greater than 0, c is greater than 0, then it's a passive element. But what if r, यहीं पे let me write it here only, if r is less than 0, if l is less than 0, if c is less than 0, then it is known as your what? Active. Element. तो अगर हम लोग जो है यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे R, L और C की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा? देन ओनली इट सेड टू बी अ पैसिव सर्किट और पैसिव एलिमेंट. अगर कोई भी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, देन ओनली इट सेड टू बी अ पैसिव सर्किट. अगर वो 0 से कम वैल्यू है, अगर नेगेटिव में R की वैल्यू है या L की वैल्यू है या C की वैल्यू है, देन इट इज सेड टू बी अ एक्टिव एलिमेंट. तो क्या हो जाएगा? दैट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विल एक्ट एज अ एक्टिव सर्किट्स, एक्ट एज अ एक्टिव एलिमेंट. ओके, so I think you should remember this particular part. It is very important. When RLC is greater than 0, then only it's a passive, otherwise it will consider as a active element. Okay, so let me conclude this session. तो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स देखा. इस डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट में सबसे पहला जो पार्ट था हमारा एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का था.
फिर उसके बाद हम लोगों ने लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स देखा। फिर हम लोगों ने बायलैटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स देखा। फिर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लम्प्ड एलिमेंट्स देखा। और फाइनली हम लोगों ने टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट देखा। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स लिए और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू पे हम लोगों ने क्या किया कि विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ओनली, कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ही देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है कुछ एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दैट एलिमेंट इज अ लीनियर और नॉन लीनियर, बायलैटरल और यूनिलैटरल, एक्टिव और पैसिव। ओके। टाइम वेरिंग के लिए हम लोगों को टाइम की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो एक टाइम इंटरवल के लिए नहीं, अगर जो है ना हमको एक से ज़्यादा टाइम इंटरवल के लिए दिया होगा तो वहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेदर इट्स अ टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। ओके, so I hope this video will help you to understand the type of elements. So thank you very much.